Hello guys, Namaskar. Myself Dr. Dinesh and today we are going to discuss the FMG questions which have been asked in the June 2021. So these are totally recall based questions from many students. I got these inputs कि सर ये questions आया था तो maybe the language is little bit different but basically our purpose is कि कौन सा topic पूछा गया था. So ये topics पूछे हुए हैं उसमें से काफ़ी कुछ रिकॉल करके स्टूडेंट्स ने दिए हैं राइट. तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे और क्या ये अपने नोट्स से थे, क्या ये अपनी क्लासेस से थे. तो गाइज जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अराउंड 26-27 क्वेश्चंस वर देयर राइट फ्रॉम फार्मेक एंड ऑल दीज क्वेश्चंस completely from my classes. You can check your notes and then definitely you can see कि सब कुछ जो हम पढ़ाते हैं वहीं से पूछा हुआ questions है. तो let's start with the question number 1. So this is the question number 1. In this you can see the question is regarding the drug of choice. Drug of choice to treat digitalis induced ventricular arrhythmia. So digitalis induced ventricular arrhythmia, one of the very important topic. As you know, digitalis is a narrow therapeutic index drug. It's a narrow therapeutic index drug. And because of that, there is risk of toxicity. There is risk of toxicity. So toxicity risk is there. Toxicity risk is there. So because there is risk of toxicity, so what is the important toxicity? The important toxicity in digitalis, I told you there are so many toxicity in the digitalis. One is like nausea, vomiting. There is myalgia muscular, ophthalmic like xanthopsia. But the very important one is the arrhythmias. So the risk of arrhythmia is there. So risk of arrhythmia is there. So guys, in arrhythmias, there are types of arrhythmia. There are so many types of arrhythmia. It could be ventricular tachycardia, means extra beats in the ventricle leads to ventricular tachycardia. It could be AV block. It could be supraventricular tachycardia. So types of arrhythmias are there. लेकिन इनमें से सबसे कॉमन जो है वो है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. सो वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बहुत कॉमन है. एंड फॉर दिस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ट्रीटमेंट वी यूज द ड्रग क्लास 1B. फॉर दिस वी यूज द क्लास 1B एंटी एरिथमिक ड्रग्स. वी यूज द क्लास 1B एंटीरिथमिक ड्रग. सो इन क्लास 1B कौन सी है अपने पास? वी हैव द लिग्नोकेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिडोकेन एंड द सेकेंड इज फेनिटोइन. तो लिग्नोकेन भी है और फेनिटोइन भी है, तो आंसर विल बी लिडोकेन राइट. सो लिडोकेन और लिग्नोकेन इज द सेम थिंग. एम्योडारोन की बात करें गाइस, सो एम्योडारोन यूज्ड फॉर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एरिथमियाज बट एक्सेप्ट दिस कंडीशन. यहाँ पे एम्योडारोन नहीं यूज करते, बाकी जगह एम्योडारोन यूज करते हैं. बहुत अच्छा ड्रग है. एट्रोपिन फॉर एवी ब्लॉक. एट्रोपिन जो आप यूज करते हैं दैट इज फॉर एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक्स. प्रोकेनामाइड कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर दिस एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर एरिथमिया बट यहाँ पे ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है. तो डिजिटालिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर एरिथमिया की ड्रग ऑफ चॉइस बार बार पूछी जाती है क्लास में. बार बार हम बताते भी हैं कि लिडोकेन और लिग्नोकेन या फिर फेनिटोइन फॉस्फेनिटोइन, दीज आर द बेस्ट ड्रग. और अगर आपसे पूछे सीवियर डिजिटालिस टॉक्सिसिटी तो फिर याद रखना कि डिजीबाइंड इज द ड्रग विच इज यूज्ड फॉर सीवियर डिजिटालिस टॉक्सिसिटी. सो यहाँ पे आंसर हो गया लिडोकेन और लिग्नोकेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फीमेल पेशेंट was on warfarin therapy. So guys, this question is from hematology or for prosthetic valve. So as you know कि भैया prosthetic valves हैं, तो for prosthetic valve because there is risk of coagulation. There is risk of coagulation, तो coagulation के chances हैं, clotting के chances हैं, तो we use the lifelong anticoagulants. और उनमें बेस्ट कौन सी है? oral anticoagulants. वारफरिन बहुत कॉमनली यूज होती थी. अभी तो हमारे पास और भी अच्छे ऑप्शंस हैं. वी हैव द oral 10th A inhibitors, we have the oral 2nd A inhibitors, but warfarin that is the standardized commonly used in past. लेकिन वारफरिन में रिस्क क्या है? वारफरिन में रिस्क है कि वारफरिन इज हैविंग लॉट ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस. बहुत सारे ड्रग इंटरेक्शंस हैं, तो इसलिए वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है. दूसरा, अगर बात करें प्रेगनेंसी की, सो व्हाट एडवाइस शुड बी गिवन टू हर रिगार्डिंग यूज ऑफ दिस ड्रग ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी. तो अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो क्या वारफरिन सेफ है? तो वारफरिन सेफ नहीं है. वारफरिन क्यों सेफ नहीं है? बिकॉज इट कैन कॉज फीटल वारफरिन सिंड्रोम. इट कैन कॉज फीटल वारफरिन सिंड्रोम एंड इसको दूसरा नाम भी हम बोलते हैं कॉन्ट्राडी सिंड्रोम. सो फीटल वारफरिन सिंड्रोम और कॉन्ट्राडी सिंड्रोम का रिस्क है वारफरिन के साथ में, इसलिए वारफरिन हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. तब बात करें कि क्या कंटिन्यू करें वारफरिन, तो बिल्कुल नहीं करेंगे. ऐड द विटामिन के, खाली विटामिन के देने से आप टेराटोजेनेसिटी को नहीं रोक सकते हैं.
राइट। तो ये भी देने का फ़ायदा नहीं है। विटामिन के तो एंटीडोट है, सो इन द ओवरडोज यू कैन यूज़ द विटामिन के। चेंज टू हेपेरिन, यस, हेपेरिन और LMW हेपेरिन। So heparin or LMW heparin, low molecular weight heparin, these are safe during pregnancy, so they can be used. So you can change the drug from warfarin to heparin. Terminate the pregnancy is not a choice in pregnancy. तो अगर वारफरिन पे है और अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो बेस्ट है कि उसको चेंज कर दो, हेपेरिन स्टार्ट कर दो. So that is important regarding the anticoagulant. Anticoagulants again very important topic. The third one, a patient presented after road traffic accident. RTA, road traffic accident. This patient is having raised intracranial pressure. Patient is having raised ICP, but no intracranial hematoma. Which is the best drug to start in this patient to manage his condition? Options हैं furosemide, which is a loop diuretic. Furosemide is a loop diuretic. Mannitol, that is osmotic diuretic. Glycerol, osmotic diuretic. And prednisolone is a corticosteroid. So these were the options. अब बात करें कि raised ICP. When the raised ICP is there, in raised ICP which is the best drug? तो आपके पास choice है कि you can use the osmotic diuretics like mannitol, or you can use the acetazolamide like drugs, you can use the glycerol also. But best कौन सा है? The best is mannitol. Now the only thing you need to remember कि भैया no intracranial hematoma. तो if there is hematoma, if there is hemorrhage, then never give mannitol. अगर mannitol यूज कर रहे हैं, बिकॉज mannitol is a osmotic diuretic, it increase the intravascular volume, it increase the intravascular volume. अगर intravascular volume को increase कर रहा है then definitely it increase the risk of hemorrhage. तो अगर पहले से hemorrhage है, bleeding है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो और ज़्यादा ब्लीडिंग होगा. सो दैट्स वाई इन द पेशेंट्स वो हैव द हेमेटोमा, इन द हेमेटोमा इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, इसलिए वहाँ पे आपको यूज़ नहीं करना है. तो जब भी अगर हम बात करें कि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, तो फिर आपको नहीं इंक्रीज हो रहा है तो हेमेटोमा में नहीं देना है. तो मैनिटोल कहाँ बेस्ट है? मैनिटोल बेस्ट है कि आपका पेशेंट जो है वो उसको इंट्राक्रिनल प्रेशर बढ़ा हुआ है लेकिन हेमेटोमा नहीं है, तो फिर मैनिटोल बेस्ट है. सो मैनिटोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस टाइप ऑफ पेशेंट. याद रखना मैनिटोल इज नॉट यूज्ड फॉर पल्मोनरी एडिमा. पल्मोनरी एडिमा में आपको मैनिटोल यूज नहीं करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कार्सिनोमा. सो रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन रिलीज द बीटा रेज, गामा रेज. सो गामा एंड बीटा रेज रिलीज हो रहा है. गामा इज हैविंग मोर पेनिट्रेटिंग पावर, मोर पेनिट्रेशन. सो बिकॉज ऑफ मोर पेनिट्रेशन इट इज़ गुड फॉर इमेजिंग, इट इज़ गुड फॉर इमेजिंग. तो इमेजिंग के लिए तो बेस्ट है कि गामा रेज, बट बीटा रेज आर देयर विच आर हैविंग लेस पेनिट्रेटिंग पावर एंड बिकॉज ऑफ लेस पेनिट्रेटिंग दे कॉज मोर डिस्ट्रैक्शन, दे कॉज मोर डिस्ट्रैक्शन एंड दैट्स वाई दीज आर बेस्ट फॉर दीज पेशेंट्स. जैसे कि कैंसर पेशेंट्स, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस में, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है रेडियो एक्टिव आयोडीन. इंपॉर्टेंट चीज़ जो रेडियो एक्टिव आयोडीन में है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वी यूज़ द आयोडीन 131. आयोडीन 131 इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड इसका हाफ लाइफ जो है वो है अराउंड 8 डेज. 8 डेज इसका हाफ लाइफ है, बार बार पूछा जाता है. तो ये रेडियो एक्टिव आयोडीन्स जो हैं ये आप थायराइड मेलिग्नेंसी में यूज़ कर सकते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज़ कर सकते हैं. लेकिन आयोडीन 131 बेस्ट है, बट आयोडीन 123 भी यूज़ कर सकते हो, आयोडीन 125 भी यूज़ कर सकते हैं. राइट नाउ अब क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कार्सिनोमा. तो अगर इनमें से आपको बेस्ट देना है तो आयोडीन 131 है. अगर क्वेश्चन आए कि नॉट यूज्ड, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन था कि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि नॉट यूज पूछा था, तो आयोडीन 127 इज नॉट यूज्ड. अगर आप पूछे कौन सा यूज करते हैं तो बेस्ट है 131, अगर आप कहीं कौन सा यूज नहीं करते हैं तो 127. राइट, तो उसी हिसाब से आपको आंसर देना है. तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था. याद रखना गाइज रेडियो एक्टिव आयोडीन है तो प्रेगनेंसी में कभी नहीं देना है. अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो प्रेगनेंसी में नहीं देना है, यंग पेशेंट्स में नहीं देना है, यंग पेशेंट्स में नहीं देना है रेडियो एक्टिव आयोडीन को, और ग्रेव्स ऑप्थेल्मोलॉजी में नहीं देना है, ग्रेव्स ऑप्थेल्मोलॉजी. तो अगर ऑक्यूलर सिम्टम्स हैं तो नहीं देना है, ये वर्सन कर सकता है. तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रेडियो एक्टिव आयोडीन का. डोंट बी कंफ्यूज विद द ल्यूगोल्स आयोडीन. तो थायराइड पे एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है, सो इट इज इंपॉर्टेंट. विच एंटी डायबिटिक ड्रग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंटी डायबिटिक, डज नॉट रिक्वायर डोज रिडक्शन
इन रीनल फेलियर पेशेंट। सो आई थिंक कि एवरीबडी शुड बी अवेयर, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबको पता होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। सो सिटाग्लिप्टिन्स, दीज ड्रग्स आर बेसिकली डाईपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स, डाईपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 inhibitor. So these can increase the endogenous glucagon like peptides, GLP-1 और you can say incretins. तो इनकी वजह से ये एक्शन है इसका। अब इन ड्रग्स की अगर हम बात करें तो जो लीनाग्लिप्टिन है, लीनाग्लिप्टिन इज एक्सक्रीटेड वाया बाइल, सो इट इज सिक्रेटेड इन बाइल, इट इज नॉट एक्सक्रीटेड वाया किडनी, दैट्स वाई इट इज द सेफेस्ट ग्लिप्टिन इन रीनल फेलियर पेशेंट। तो बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और क्लास में हमने बताया था लीनाग्लिप्टिन का किडनी से कोई लेना देना नहीं, सो दैट्स व्हाई इट इज सेफ इन द रीनल फेलियर पेशेंट। सो इंपॉर्टेंट ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 6, हॉर्मोन्स। सो एंडो से देखिए 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने बार बार आपको बताया भी हुआ है। तो हॉर्मोन्स विच आर इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी आर, कौन से हार्मोन जो हैं वो कैल्शियम बैलेंस से रिलेटेड हैं। तो आप फिजियोलॉजी का भी मान सकते हो, फार्मे का भी मान सकते हो। आजकल इंटर रिलेशन मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स में कोरिलेशंस है, तो आपको पता होना चाहिए। तो कौन से हार्मोन हैं? विटामिन डी का रोल है डेफिनेटली, तो ये तो सब में ऑप्शन था। कैल्सिटोनिन का रोल है, यस। पीटीएच का रोल है, यस, राइट। विटामिन डी, कैल्शियम, इंसुलिन, इंसुलिन का कोई रोल नहीं है। विटामिन डी, टीएसएच, पीटीएच, तो टीएसएच का रोल नहीं है, टीएसएच का रोल नहीं है। तो आंसर हो गया विटामिन डी। तो यहाँ पे विटामिन डी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पीटीएच इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कैल्सिटोनिन इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का कैल्शियम पे रोल है। विटामिन क्या करेगा? विटामिन डी कैल्शियम को इंक्रीज करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, फॉस्फेट लेवल को डिक्रीज करता है। पीटीएच का क्या रोल है? सॉरी, दोनों को इंक्रीज कर रहा है। विटामिन डी की बात करें तो कैल्शियम इंक्रीज कर रहा है और फॉस्फेट इंक्रीज कर रहा है। पीटीएच का क्या रोल है? कैल्शियम को डिक्रीज करेगा और फॉस्फेट को इंक्रीज करेगा। और कैल्सिटोनिन का क्या रोल है? ये दोनों को कम करेगा, कैल्शियम भी कम करेगा और फॉस्फेट भी कम करता है, शिफ्ट कर देता है इंट्रासेलुलरली। तो कैल्शियम अंदर चला जाता है कैल्सिटोनिन की वजह से, इसलिए हाइपर कैल्सीमिया में यूज करते हैं कैल्सिटोनिन। तो ये इनका रोल है। तीनों हार्मोन्स का आप बोल सकते हैं एंडोजिनस जो है सब्सटेंस है, उनका रोल है कैल्शियम बैलेंस में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया एंडो से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि भैया ड्रग फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ड्रग फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की मेल इंपॉर्टेंस की ड्रग्स कौन सी है? तो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स हैं। इनसे क्या होता है? दे इंक्रीज द नाइट्रिक ऑक्साइड, इंक्रीज द साइक्लिक जीएमपी, इंक्रीज द साइक्लिक जीएमपी एंड कोजिंग द वेजोडाइलेशन, कोजिंग द वेजोडाइलेशन। तो वेजोडाइलेशन कर रही है, इंक्रीज द ब्लड फ्लो, हेल्प्स इन इरेक्शन। तो गाइस एक ही ग्रुप की ड्रग हैं सारी, सिल्डेनाफिल, टेडेलाफिल, एवेनाफिल, वर्डेनाफिल लाइक ड्रग्स। जो वाइग्रा है कॉमनली यूज इन द पास्ट, दैट वाज सिल्डेनाफिल। क्या डिसएडवांटेज था कि एक तो ये शॉर्ट एक्टिंग है, तो अगर हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन की बात करें तो वहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग है तो इतना अच्छा नहीं है क्योंकि हमें बार बार देना पड़ रहा है। दूसरा, आजकल हमारे पास ऑप्शन है लॉन्ग एक्टिंग का, तो अगर लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो टेडेलाफिल इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग, टेडेलाफिल इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग। वन मोर एडवांटेज इज देयर, सो एक तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग हो गया। एक और एडवांटेज है टेडेलाफिल का कि रिस्क ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस का रिस्क जो है इससे नहीं है ऑलमोस्ट, या बहुत ही कम रिस्क है, तो वो भी एक एडवांटेज है टेडेलाफिल का। तो आजकल टेडेलाफिल प्रीफर्ड है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी होती है, इनमें बार बार पूछते हैं कि सिल्डेनाफिल के साथ या इन ड्रग्स के साथ कौन सा ड्रग यूज़ नहीं करना चाहिए, तो नाइट्रेट्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। नाइट्रेट्स एंजाइना और एमआई के पेशेंट्स में यूज करते हैं, तो वहाँ पे ये ड्रग्स अगर आप यूज करोगे साथ में तो दोनों वेजोडाइलेशन करेगी, सडन हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया। तो जरूर याद रखना, वो भी बार बार पूछते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर मेडिकल क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। सो अगेन गाइज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, राइट। तो आज इस बार के जो एग्जाम था उसमें आपने देखा कि फार्मेक का मुझे जो क्वेश्चंस देख के आइडिया लग रहा है कि ज़्यादातर टॉपिक्स वो थे जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्लिनिकली, बट दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, सो इफ़ यू वांट टू क्लोज द डक्टस आर्टरियोसिस, दो चीज़ हैं कि भैया उसको ओपन ही रखना है या उसको क्लोज करना है। अगर आपको उसको ओपन रखना है, इफ़ यू वांट टू मेंटेन द पेटेंसी, तो फिर आपको यूज करना है प्रोस्टाग्लैंडिन्स।
तो आपको यूज करना है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। बट इफ़ यू वांट टू क्लोज इट, नॉर्मली हम क्या चाहेंगे, नॉर्मली हम चाहेंगे क्लोज करना। ओपन करना कब चाहेंगे, ओपन रखना कब चाहेंगे, इन द पेशेंट्स हु हैव द TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो TGA पेशेंट्स में हम ओपन रखते हैं जब तक कि सर्जरी नहीं कर देते, लेकिन नॉर्मली अगर ओपन है तो हम क्लोज करते हैं उसको, और क्लोजर के लिए वी यूज़ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनहिबिटर्स। तो ऐसी ड्रग यूज करेंगे जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के इफेक्ट को ब्लॉक कर दे। अब देखिए ऑप्शंस अगर हम बात करें, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, इंडोमिथासिन, मेफेनेमिक एसिड, they all are non-steroidal anti-inflammatory drug. They all are non-steroidal anti-inflammatory drugs. All are decreasing the prostaglandins. तो सारे ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स को डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इनमें से बेस्ट कौन सा है? तो बताया हुआ क्वेश्चन है कि भैया वैसे तो इंडोमिथासिन मोस्ट पोटेंट है, लेकिन अगर बात करें सेफ्टी वाइज तो आजकल प्रीफर्ड है आइबुप्रोफेन। सो आइबुप्रोफेन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। So ibuprofen is the best drug nowadays. We don't prefer इंडोमिथासिन। एस्प्रिन भी यूज कर सकते हैं, इंडोमिथासिन भी यूज करते हैं, आइबुप्रोफेन भी यूज करते हैं, लेकिन आइबुप्रोफेन इज सेफेस्ट एंड दैट इज प्रीफर्ड एज पर द लेटेस्ट स्टडीज। तो आइबुप्रोफेन अगर ऑप्शन में है तो वो बेस्ट आंसर माना जाएगा। अगर वो ऑप्शन में ही नहीं है, जैसे कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि ब्रूफेन ऑप्शन में नहीं था सर, तो फिर इंडोमिथासिन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ फीमेल पेशेंट, तो कुछ क्लिनिकल क्वेश्चंस थे बहुत ही अच्छे। फीमेल पेशेंट्स प्रेजेंटिंग विद द पेन एंड रेडनेस इन हर ग्रेट टो में सीरम यूरिक एसिड लेवल यू कैन सी इज 9.7, सो वेरी हाई सीरम यूरिक एसिड लेवल। सो टिपिकल हिस्ट्री हो गया गाउट पेशेंट का, गाउट जैसा हिस्ट्री है। अपार्ट फ्रॉम एनाल्जेसिक वन मोर ड्रग वाज प्रिस्क्राइब टू हर। एनाल्जेसिक क्यों दे रहे हैं? टू कंट्रोल दैट पेन, बट नाउ वन मोर ड्रग वाज प्रिस्क्राइब टू हर दैट डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड, डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड, डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। सो यूरिक एसिड को कम करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, या तो सिंथेसिस कम कर दो, या एक्सक्रीशन को बढ़ा दो, या मेटाबोलाइज कर दो। सिंथेसिस कम या एक्सक्रीशन, जिसको आप यूरिकोशूरिक बोलते हैं, या फिर मेटाबॉलिज्म। तो सिंथेसिस कम करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि वी कैन यूज़ द एलोप्यूरिनोल, जाइलोरिक टैबलेट जो यूज़ करते हैं, और वी कैन यूज़ द फेबुक्सोस्टैट, फेबुक्सोस्टैट। तो ये ड्रग्स हैं जो कि आप यूज़ करते हो यूरिक एसिड को कम करने के लिए। प्रीफर्ड वन इज एलोपेरिनोल, दैट इज द बेस्ट ड्रग। तो जेंथिन ऑक्सीडेज स्टेट, तो जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। तो ये कौन सी ड्रग है? ये ड्रग जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। दे डिक्रीज द सीरम यूरिक एसिड लेवल यूज्ड इन द गाउट पेशेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ए पेशेंट विद सीजर्स डिसऑर्डर? तो अगर सीजर्स हैं पेशेंट को तो कौन सा नहीं देना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। सेफिक्जिम, दैट इज 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, सेफिक्जिम इज द 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। ऑफ्लॉक्सासिन इज ए फ्लोरोक्विनोलोन, एरिथ्रोमाइसिन इज ए मैक्रोलाइट, एंड मोक्सीफ्लॉक्सासिन इज ए फ्लोरोक्विनोलोन। नाउ गाइस, सीजर्स का रिस्क है तो विद फ्लोरोक्विनोलोन्स, आई टोल्ड यू 2 इंपॉर्टेंट चीज़। द मोस्ट कॉमन टॉक्सिसिटी की बात करेंगे तब तो गैस्ट्रिक, लेकिन अगर सीरियस की बात करें, सीरियस टॉक्सिसिटी, देन सीजर्स। तो इसमें सीजर्स का रिस्क है, सीजर्स का रिस्क है। तो जिस पेशेंट्स को सीजर्स हों वहाँ पे आप इसको नहीं यूज करेंगे। अब आपको कि सर लेकिन 2 चॉइस में है, तो गाइज मोक्सीफ्लॉक्सासिन इज सेफर, मोक्सीफ्लॉक्सासिन इज सेफर, इट इज़ नॉट कॉजिंग सीजर्स। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन के रिस्क ज़्यादा है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन का रिस्क ज़्यादा है, मोक्सीफ्लॉक्सासिन इज वन ऑफ द सेफर, इसलिए आजकल मोक्सीफ्लॉक्स प्रीफर करते हैं। तो ऑफ्लॉक्स विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर बी स्टिंग और मल्टीपल बी स्टिंग a lady developed hypotension and difficulty in breathing। तो बी स्टिंग हुआ, हाइपोटेंशन हो रहा है बिकॉज ऑफ वेजोडाइलेशन, एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। कौन सा रिसेप्टर? हिस्टामिन रिसेप्टर। सो हिस्टामिन कैन कॉज वेजोडाइलेशन, हिस्टामिन कैन कॉज ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो क्या रिएक्शन हो रहा है? बी स्टिंग हुआ, वेजोडाइलेशन, एंड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एंजियोडीमा, वेजोडाइलेशन मीन्स hypotension, shock. So it is basically causing anaphylaxis. It is causing anaphylaxis, so patient may develop the anaphylactic shock. So again, very important, adrenaline used for anaphylactic shock. Why we use adrenaline in anaphylactic shock? Because adrenaline is the physiological antagonist. Adrenaline is the physiological antagonist of histamine. It is the physiological antagonist of histamine. So that's why we use the adrenaline. तो ये इसको ब्लॉक कर देगा।
alpha receptor causing vasoconstriction, beta receptor causing bronchodilation. So this is physiological antagonist. अगर एंटीस्टामिनिक देते हैं तो वो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. So out of these you can see adrenaline is the best drug. Why we don't use noradrenaline? Because norad beta 2 पे एक्ट नहीं करता, ब्रोंकोडाइलेशन नहीं कर सकता. आइसोप्रेनालिन अल्फा पे एक्ट नहीं करता, राइट. तो इसलिए एड्रेनालिन बेस्ट है. एड्रेनालिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक. और कौन से रूट से यूज करते हैं? इंट्रामस्कुलरली 1:1000 सॉल्यूशन 0.2 to 0.5 मिलीग्राम. तो ये एड्रेनालिन का इंपॉर्टेंट यूज है. तो आंसर हो गया एड्रेनालिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपामिन इन लो डोज एक्ट्स ऑन विच रिसेप्टर एंड कॉजेज विच एक्शन. तो आई थिंक बताने का जरूरत नहीं हो चाहिए. लेस देन 2, 2 to 10 एंड मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट. तो लेस देन 2 में इट इज एक्टिंग ऑन D1, 2 to 10 इट इज एक्टिंग ऑन बीटा 1 एंड मोर देन 10 इट इज एक्टिंग ऑन अल्फा 1. डब्बा याद करो, DBA. सो लो डोज मीन्स लेस देन 2, it is acting on D1. And what is the role of D1? D1 receptor increases the renal blood flow, so it can increase the urine output. In the 2 to 10 beta 1 receptor, beta 1 पे positive chronotropic and positive inotropic. Alpha, it is in the high dose and cause vasoconstriction. Yes, so that's why it is used for shock patient. तो अगर patient को shock है, cardiogenic shock, so patient is having cardiogenic shock, then it is the best drug. और भी प्रीफर्ड है इफ़ द कार्डियोजेनिक शॉक विद ओलिग्यूरिया. तो इससे बेटर कोई ड्रग नहीं है. देन वी स्टार्ट द ड्रग डोपामिन ड्रिप मोर देन 10 रिकवर द शॉक एंड ऑल्सो करेक्ट द ओलिग्यूरिया. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डोपामिन, डोब्यूटामाइन, कैटेकोलामिन्स. बार बार मैं बताता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट हैविंग वीकनेस इन द लिम्ब एंड इट इज मोर इन द इवनिंग बिकॉज ऑफ द एक्सर्शन. Edrophonium was used for diagnosis. It is one of the drug used for diagnosis of myasthenia gravis. So in myasthenia gravis, we used for diagnosis, we use the two drug. One is edrophonium, which is also called as tensilone, and the second one is D-tubocurarin. Condition of the patient improve. So if we use the edrophonium, that is a cholinesterase inhibitor. Cholinesterase inhibitor, it increase the acetylcholine. So cholinergic drug. So definitely it improve the condition. The condition will be improved. That's why it is called as ameliorative test for diagnosis of myasthenia gravis. Amelioration of symptoms. And D-tubocurarin, it is nicotinic receptor blocker, NM blocker. So it will cause the worsening of the condition. Worsen. So या तो कंडीशन इंप्रूव होगा या वर्सन होगा. तो अब कंडीशन इंप्रूव्स आफ्टर गिविंग एड्रोफोनियम. सो दैट मीन्स दिस पेशेंट इज सफरिंग ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस. सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइस्थेनिया ग्रेविस का डायग्नोसिस. अगर कंडीशन वर्सन नहीं हो रही है, इंप्रूव नहीं होगी, वर्सन हो रही है एड्रोफोनियम से ही. इफ द कंडीशन इंप्रूव्स देन यू कैन से इट इज दिस एड्रोफोनियम. और अगर कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है, वर्सन हो रही है, तो कोलिनर्जिक क्राइसिस हो सकता है. तो वो हो गया आपका एड्रोफोनियम टेस्ट. एड्रोफोनियम इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14. अ चाइल्ड वाज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर ईटिंग एन अननोन प्लांट. स्किन वाज ड्राई, सो ड्राई स्किन, हाई बॉडी टेम्परेचर, प्यूपिल्स आर डायलेटेड एंड रेज्ड हार्ट रेट. सो ड्राई स्किन ड्राई हो गया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर. हाई बॉडी टेम्परेचर हो गया. प्यूपिल डायलेटेड, सो मिड्रियासिस, साइक्लोप्लेजिया मिड्रियासिस, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस. तो ये सारे किसके सिम्टम्स हैं? दीज आर द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ धतूरा पॉइजनिंग और बेलाडोना पॉइजनिंग. ड्राई स्किन है मीन सिक्रीशंस कम हो रहे हैं, प्यूपिल डायलेट हो रही है, टैकीकार्डिया हो रहा है. तो ये सारे सिम्टम्स हैं पैरासिम्पेथोलाइटिक्स के. तो कौन सा पॉइजनिंग हुआ? पोपी तो मॉर्फिन है, तो ये मॉर्फिन के सिम्टम्स नहीं है. मॉर्फिन में तो पिन पॉइंट पिपिल होता है, मियोसिस होता है. कैनाबिनोइड्स, कैनाबिस नहीं है, वहाँ पे रेडनेस ऑफ द कंजक्टाइवा और वो वाले सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं. मशरूम कोलिनर्जिक है. धतूरा इज एंटी कोलिनर्जिक. सो इट इज़ द केस ऑफ धतूरा पॉइजनिंग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग. क्या यूज करते हैं? इन दिस वी यूज द फाइसोस्टिग्मिन. सो इन द ट्रीटमेंट वी यूज द फाइसोस्टिग्मिन. Symptomatic treatment, but the best antidote is physostigmine injection.
वाई नॉट नियोस्टिग्मिन? क्योंकि वो ब्रेन में नहीं जाता। फाइसोस्टिग्मिन कैन रीच टू ब्रेन, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट, अ फार्मर प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद गार्लिक ऑडर, ब्रीदिंग, पिन पॉइंट प्यूपिल, एक्सेसिव सलाइवरी सिक्रीशन। देखिए फिर से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट दिस कंडीशन, सो इंक्रीज्ड सिक्रीशंस, पिन पॉइंट प्यूपिल, यही चीज डिस्कस करते हैं हम बार बार। इंक्रीज सिक्रीशन, पिन पॉइंट प्यूपिल, यूरिनेशन, स्टूल पास्ड इन द क्लोथ्स, सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कोलिनर्जिक, अपोजिट ऑफ एंटीकोलिनर्जिक। तो ये कोलिनर्जिक के सिम्टम्स हैं, वो एंटीकोलिनर्जिक के थे। तो एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक है, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ड्रग आप यूज करेंगे, तो डेफिनेटली वी विल यूज द एट्रोपिन बिकॉज इट इज द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। सो इट इज द कोलिनर्जिक पॉइजनिंग, or you can say OP poisoning or carbamate poisoning. So in OP poisoning patients we use the atropine. Atropine is the best antidote. N-acetylcysteine, no, ये तो पैरासीटामोल पॉइजनिंग का ड्रग है। Pralidoxime is one of the oxime but it is not the drug of choice. It is not drug of choice in OP poisoning. OP poisoning का drug of choice atropine है। OP Pralidoxime can be used but not the drug of choice Flumazenil for the diazepam, benzodiazepines. So atropine is the drug of choice, confuse नहीं होना है। Then guys, next is an elderly patient is diagnosed with Alzheimer's disease. Due to his symptoms of dementia, we have diagnosed the Alzheimer's. Alzheimer's means senile dementia. So old age में जाके dementia हो रहा है, so senile dementia. Which neurotransmitter is important for causing these symptoms? So Alzheimer's किसकी वजह से होता है? Because of the Maynard nucleus in the brain decrease the acetylcholine level. So in this area decrease the acetylcholine, or you can say damage of cholinergic neurons. तो cholinergic neurons डैमेज होंगे, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो acetylcholine is responsible for this, and that's why in the treatment we use the cholinergic drugs. We use the cholinergic drugs, cholinergic central cholinergics. We use the cholinergic central cholinergics like donepezil, rivastigmine, ये वाली ड्रग्स आप यूज करते हैं इसके लिए, donepezil, rivastigmine, galantamine लाइक ड्रग्स। तो इसलिए एसिटाइलकोलिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइलकोलिन मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है, सेरोटोनिन मूड के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर एड्रिन एंजाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डोपामिन बिहेवियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बिहेवियर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है डोपामिन, अगर मूड की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेरोटोनिन, अगर एंजाइटी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर एड्रिन, और अगर मेमोरी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है एसिटाइलकोलिन। तो ये जरूर याद रखना है आपको। देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, सो देख रहे हैं या तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है या क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं, रटने वाले क्वेश्चंस बहुत ही कम हैं। एल्डरली पेशेंट प्रेजेंटिंग विद ट्रेमर्स, हाइपोकाइनेजिया एंड मसल रिजिडिटी, डायग्नोज्ड विद पार्किंसोनिज्म, ट्रायड ऑफ सिम्टम्स, 3 सिम्टम्स हैं, ट्रेमर्स, हाइपोकाइनेजिया एंड मसल रिजिडिटी, तो पार्किंसोनिज्म। विच न्यूरोट्रांसमीटर? सो इन पार्किंसोनिज्म, in Parkinson's disease what happens? In Parkinson's disease the area is substantia nigra. The area is substantia nigra, or you can say nigrostriatal tract. Nigrostriatal tract, in this there is decreased dopamine. Why? Because of the destruction of dopaminergic neurons. तो यहाँ कौन से न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। सो दैट्स व्हाई इन पार्किंसंस डिजीज प्रॉब्लम इन द डोपामिन, दैट्स वाई वी यूज द डोपामिनर्जिक ड्रग्स। तो या तो आप डोपामिनर्जिक यूज करते हो या एंटीकोलिनर्जिक यूज करते हो, तो मेनली डोपामिनर्जिक इन पार्किंसंस, प्राइमरी पार्किंसंस डिजीज। सो दिस इज अबाउट द सबस्टेंशिया नाइग्रा और नेग्रोस्ट्रेटियल ट्रैक्ट। उसके बाद आता है नेक्स्ट, विच एंटी डिप्रेसेंट एक्ट वाया इनहिबिटिंग द रीअपटेक ऑफ बोथ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ऐसा कौन सा एंटी डिप्रेसेंट है जो कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर रहा है? तो सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, यही पूछा है। तो मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। फेनेल्जिन दैट इज माओ इनहिबिटर, माओ एंजाइम इनहिबिटर। एमिट्रिप्टालिन दैट इज ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इनहिबिटिंग द रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन, लेकिन मेन किसका है? नॉर एड्रिन का। फ्लुओक्सेटिन SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर,
एंड वेनलाफैक्सिन दैट इज SNRI। तो यहाँ पे SNRI पूछा है तो आंसर वेनलाफैक्सिन। थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि सर TCH भी हो सकता है, लेकिन वहाँ नॉर एड्रिन मेन है, तो लैंग्वेज के हिसाब से वेनलाफैक्सिन बेस्ट है। तो इसमें आपके पास चॉइस है, ड्यूलॉक्सेटिन यूज कर सकते हो, वेनलाफैक्सिन यूज कर सकते हो एंड मिलनासिप्रान यूज कर सकते हो। सो दीज आर द ड्रग्स इंपॉर्टेंट फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन, फाइब्रोमाइल्जिया। दीज आर इंपॉर्टेंट ड्रग, न्यूरोपैथीज। सो डिप्रेशन, एंजाइटी, फाइब्रोमाइल्जिया, न्यूरोपैथीज में वी यूज दीज ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अ पेशेंट डेवलप्ड मसल रिजिडिटी एंड हाइपरथर्मिया आफ्टर गिविंग हेलोथेन एनेस्थेटिक। तो हेलोथेन causing hyperthermia, H4H I told you, हेलोथेन hyperthermia. So there is malignant hyperthermia. हेलोथेन में दो इंपॉर्टेंट थे, malignant hyperthermia, H4 hyperthermia, and the second is हेलोथेन can cause the second important, हेलोथेन में hyperthermia and hepatotoxicity, right? So यहाँ hyperthermia है, कौन सा रिसेप्टर? Ryanodine receptor. So ryanodine receptor stimulation in the skeleton muscles. So that is related to calcium. So release the calcium, increase the calcium release, and that is responsible for skeleton muscles contractility और rigidity. तो muscles contract होंगी, heat generate होगा, right? तो ये इसका रोल है। तो rigidity and hyperthermia. तो which is ion is responsible? So the ion responsible is calcium ion. What is the treatment for this? The treatment for this is dantrolene sodium. Dantrolene sodium is the treatment for this. That is directly acting muscle relaxant. Ryanodine receptor को ब्लॉक करती है, डायरेक्टली मसल्स को रिलैक्स कर रहा है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ड्रग अडिक्ट पर्सन प्रेजेंटेड विद अल्सरेशन ओवर द स्किन, स्किन पे अल्सर है, हैविंग ईचिंग एंड स्क्रैच मार्क्स ओवर द स्किन, ही इज हैविंग टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड मिड्रियासिस। ये सेम क्वेश्चन हमने टेस्ट में डिस्कस किया हुआ है। विच सब्सटेंस इज कॉजिंग दीज सिम्टम्स। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, अगर मेरे MCQ जितने भी मैंने डिस्कस किए हैं आपकी क्लासेस में, तो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, राइट? ऑलमोस्ट लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है बट क्लिनिकल सिनेरियो सेम है। तो यहाँ पे देखिए अल्सरेशन ओवर द स्किन, ईचिंग, स्क्रैच मार्क्स, तो आप बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, कौन सी ड्रग से होता है? कोकेन बग्स। In cocaine bugs we have the tactile hallucination, and because of tactile hallucination patient scratch mark करता है, पूरी बॉडी पे उसको लगता है बग्स हैं तो स्क्रैच करता है। यहाँ मिड्रियासिस भी है और हाइपरटेंशन टैकीकार्डिया भी है। वो क्यों है? बिकॉज कोकेन इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन, इट इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन, सो इट इंक्रीज द नॉरएड्रेनालिन लेवल। नॉरएड्रेनालिन मीन्स सिंपैथेटिक, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, मिड्रियासिस, तो इसकी वजह से हो रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया? कोकेन। कोकेन में ये सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे। सो ही इज ए कोकेन अब्यूजर। हेरोइन में ऐसा नहीं होता है। हेरोइन में आप देखते हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट नहीं होता है, वो ओपियोइड है, सिंपैथेटिक सिस्टम सप्रेस होता है। कैनाबिस में आप देखेंगे तो ये सिम्टम्स नहीं है। कैनाबिस में मेन थोड़ा सेडेटिव रहता है, पेशेंट को सेडेट रहता है, आइज रेड रहती हैं, वो सब कुछ रहता है। LSD में हेल्यूसिनेशंस ज़्यादा मिलते हैं। तो इट इज़ ए टिपिकल केस ऑफ कोकेन अब्यूजर्स। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज drug used in emergency management of asthma but not having bronchodilator property. So repeatedly asked, कितनी बार मैंने क्लास में भी क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो इमरजेंसी अस्थमा में यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन ब्रोंकोडायलेटर नहीं है? थियोफाइलिन मेथाइल जेंथिन ब्रोंकोडायलेटर, साल्ब्यूटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर, इप्राट्रोपियम एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर। ये मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, ये बीटा रिसेप्टर की एगोनिस्ट है, और ये मेथाइल जेंथिन है जो कि एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। तो ये तो ब्रोंकोडायलेटर है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि इमरजेंसी में यूज़ तो करते हो, तो वी यूज़ द हाइड्रोकोर्टिसोन, इट इज़ फास्टर एक्टिंग स्टीरॉइड, इट इज़ फास्टर एक्टिंग कोर्टिकोस्टीरॉइड, इट इज़ यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी है, फास्ट एक्टिंग है, लेकिन ये ब्रोंकोडायलेटर नहीं है। सो कौन सा ब्रोंकोडायलेटर नहीं है लेकिन इमरजेंसी में यूज कर रहे हैं? दैट इज हाइड्रोकोर्टिसोन। नाउ गाइस नेक्स्ट, अ पेशेंट हैविंग हिस्ट्री ऑफ ट्रैवलिंग टू असम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, डेवलप्ड फीवर, चिल्स, राइगर्स एंड ऑल्टर्ड सेंसोरियम। ऑल्टर्ड सेंसोरियम, फीवर, चिल्स, राइगर मीन्स सेरिब्रल मलेरिया, और यू कैन से कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया।
So definitely the injectable drug will be used. The peripheral smear shows the presence of Plasmodium falciparum. It's a case of Plasmodium falciparum cerebral malaria. What is the treatment of choice? Chloroquine with primaquine? No. Chloroquine with primaquine is used इन द क्लोरोक्विन सेंसिटिव वाइवैक्स मलेरिया. आजकल क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट है फाल्सीपेरम तो, और दूसरा सेरिब्रल मलेरिया है तो क्लोरोक्विन का वैसे भी रोल नहीं है. सल्फाडॉक्सिम पायरामिथामिन अलोन नो, ये सेरिब्रल मलेरिया के लिए यूज़ नहीं करते, फाल्सीपेरम में यूज़ कर सकते हो. ल्यूमेफेंट्रिन अलोन नो. आर्टिसोनेट यस. सो IV आर्टिसोनेट, आर्टिमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपीज. आर्टिसोनेट इज द फास्टर एक्टिंग ड्रग, फास्टर एंड शॉर्टर एक्टिंग ड्रग, एंड दैट इज बेस्ट नाउअडेज फॉर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया और सीवियर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया. तो आर्टिसोनेट. अगर आपसे सिंपली पूछता कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट का रेजिमेन बताइए ACT में, तो आप आर्टिमीथर प्लस ल्यूमेफेंट्रिन यूज़ करते हैं. लेकिन अगर यहाँ इंजेक्टेबल ड्रग की बात कर रहे हैं तो एक ही आपके पास आर्टिसोनेट, तो कॉम्प्लिकेटेड में वी विल स्टार्ट द आर्टिसोनेट. राइट. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया मलेरिया से रिलेटेड, हर साल मलेरिया पे क्वेश्चन आता है. देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द स्टमक. तो गाइज आयरन को एब्जॉर्प्शन करना है तो जितने भी आयरन के प्रिपरेशंस आप सबने देखा होगा कि दे कंटेन्स द एस्कॉर्बिक एसिड. वाई? बिकॉज एस्कॉर्बिक एसिड कन्वर्ट द फेरिक फॉर्म टू फेरस फॉर्म, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट कैन एनहेंस द आयरन एब्जॉर्प्शन. तो ऑल दीज प्रिपरेशंस आप देखो, आयरन के जितने भी प्रिपरेशन मार्केट में आते हैं, दीज आर फेरस सल्फेट प्लस विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड. इसलिए आप बोलते हो लेमन वाटर के साथ यूज़ करो, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है. राइट. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. फूड के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए, फाइटेट्स होते हैं तो फाइटेट्स एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं. चाय कॉफ़ी के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए. तो ये क्लास में डिस्कस किया हुआ बार बार क्वेश्चन है कि आयरन कब देना चाहिए बेस्ट, तो विटामिन C के साथ, लेमन वाटर के साथ आप यूज़ कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट दिस. तो ये डोज रिस्पॉन्स कर्व है. इन डोज रिस्पॉन्स कर्व वी हैव दीज ड्रग्स A B C D. ये A है, ये B है, ये C है और ये D है. हाइट, आई टोल्ड यू, हाइट अगर आप देखेंगे जब भी किसी ग्राफ की, तो हाइट का मतलब है एफिकेसी. हाइट का मतलब है DRC में एफिकेसी. अगर आप लेफ्ट राइट देखते हैं तो लेफ्ट साइड का ग्राफ जो है वो राइट साइड से ज़्यादा पोटेंट मिलेगा. तो फिर आप ड्रग्स की डोज कंपेयर करते हैं, इफेक्ट सेम रखते हैं, तो पोटेंसी से रिलेटेड है. तब देखिए यहाँ पे बात करें, A और B इक्वल पोटेंट, इक्वल एफिकेसी है, D और C का इक्वल एफिकेसी है. सो ड्रग C इज लेस पोटेंट एंड मोर एफिकेशियस देन ड्रग A. नहीं, ज़्यादा एफिकेसी तो हो ही नहीं सकती, C का C A और B से कम एफिकेशियस है. ड्रग B इज लेस पोटेंट एंड इक्वली एफिकेशियस देन द ड्रग D. नहीं, एफिकेसी दोनों की अलग है, तो ये भी नहीं हो सकता. ड्रग D इज मोर पोटेंट एंड मोर एफिकेशियस देन द ड्रग B. नहीं, वो भी नहीं हो सकता. पोटेंट अगर हम बात करें, ड्रग D इज मोर पोटेंट, यस इट इज मोर पोटेंट, एंड मोर एफिकेशियस, नहीं, एफिकेसी ज़्यादा नहीं है. ड्रग A इज मोर पोटेंट एंड इक्वली एफिकेशियस देन द ड्रग B. अब देखिए A और B को कंपेयर करते हैं. A लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइडेड में है तो ज़्यादा पोटेंट है. B के बराबर हाइट है तो इक्वल एफिकेशियस है. तो मोर पोटेंट एंड इक्वल एफिकेसी. सो ऑप्शन D इज करेक्ट. तो हाइट बताता है एफिकेसी, लेफ्ट और राइट साइड बताता है पोटेंसी DRC पे. तो उससे आपको कंपेयर करना है. इंपॉर्टेंट है डोज रिस्पॉन्स कर. Next question, 4-year-old boy drank full bottle of iron syrup. So it is iron toxicity, iron poisoning, acute iron poisoning, acute iron poisoning. तो यहाँ पे which is the best antidote. तो आपको एंटीडोट देना है, बेस्ट एंटीडोट, तो आप कौन सा यूज कर सकते हैं, तो आप इनमें से कोई चिलेटिंग एजेंट यूज करेंगे. डेस्फेरियोक्सामिन बाय नेम ओनली, यू कैन सी इट इज फॉर फेरिक, इट इज द इंजेक्टेबल एंटीडोट फॉर आयरन पॉइजनिंग. डेस्फेरियोक्सामिन, डेफेरिप्रोन एंड डेक्सरेजोक्सोन, ये तीन ही यूज करते हैं. सो डेस्फेरियोक्सामिन, डेफेरिप्रोन एंड डेक्सरेजोक्सोन. These are the drugs which are used in the iron toxicity. EDTA की बात करें, EDTA so that is used for lead and all, लेकिन आयरन के लिए नहीं है. बाल की याद करें, बाल तो हैवी मेटल्स में यूज करते हैं. आप बोल सकते हो कि बाल में इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि आपका मरकरी हो गया, मरकरी में यूज करते हैं. देन आर्सेनिक में यूज करते हैं, राइट, मरकरी में, आर्सेनिक में, इन सब में यूज करते हैं इसको. डी पेनिसिलामिन जो है वो कॉपर में यूज करते हैं, लेकिन बेस्ट नहीं है. बेस्ट तो कॉपर की पॉइजनिंग में आजकल जिंक सल्फेट बेस्ट है. जिंक सल्फेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉपर पॉइजनिंग.
बाल जो है वो मरकरी आर्सेनिक में यूज करते हैं। बाल को ध्यान रखना, कभी भी इसमें आयरन वगैरह में यूज नहीं करते हैं, राइट, लेड में यूज नहीं करते हैं, मेनली मरकरी और आर्सेनिक के लिए यूज करते हैं। तो डेस्फेरियोक्सामिन इज इंपॉर्टेंट चिलेटिंग एजेंट फॉर आयरन। पॉइजनिंग के आप देख रहे हैं 3-4 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट इज विच कॉम्बिनेशन ऑफ सीजर्स एंड इट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ड्रग इज फॉल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एंटी एपिलेप्टिक्स। एब्सेंट सीजर एथोसक्सेमाइड, डेफिनेटली इट इज ट्रू। एथोसक्सेमाइड फॉर एटिपिकल and valproate for typical ethosuximide and for atypical valproate, तो दोनों यूज करते हैं। छोटे बच्चों में एथोसक्सेमाइड बेस्ट है, राइट। मायोक्लोनिक सीजर की टोपिरामेट नहीं, ये फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है। टोपिरामेट, फेनिटोइन, कार्बामाजेपिन ये तो यूज ही नहीं करते हैं। मायोक्लोनिक सीजर में क्या यूज करते हैं? मायोक्लोनिक में यूज करते हैं वेल्प्रोएट, मायोक्लोनिक में यूज करते हैं वेल्प्रोएट या फिर लेमोट्रिजिन या फिर लेवेट्रेसिटाम, ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ट है वेल्प्रोएट, लेकिन फीमेल्स में हम लेवेट्रेसिटाम या लेमोट्रिजिन यूज करते हैं क्योंकि फीमेल्स में रिस्की हो जाता है। फोकल सीजर्स की बात करें, लेवेट्रेसिटाम इट इज फर्स्ट लाइन, दैट इज ट्रू, बट नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस तो क्या है? कार्बामाजेपिन, लेकिन अगेन वी कैन यूज द लेमोट्रिजिन, वी कैन यूज द लेवेट्रेसिटाम, बट द बेस्ट ड्रग इज कार्बामाजेपिन और ऑक्स कार्बाजेपिन। जनरलाइज सीजर्स में वेल्प्रोएट, दैट इज अगेन ट्रू। तो बाकी ट्रू हैं, लेकिन मायोक्लोनिक सीजर्स में टोपिरामेट ट्रू नहीं है, ये तो वर्सन कर सकता है। फेनिटोइन, कार्बामाजेपिन, टोपिरामेट ये मायोक्लोनिक में यूज नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया ड्रग ऑफ चॉइस और यू कैन से फर्स्ट लाइन ड्रग इन द सीजर्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट, वन प्रेग्नेंट लेडी ऑन लिथियम थेरेपी केम फॉर एंटीनेटल विजिट इन द ओपीडी। सो लिथियम पे है एंटीनेटल। व्हाट इज द रिस्क टू द एक्सपोज्ड फीटस हैविंग बाय दिस ड्रग। सो क्या रिस्क होगा फीटस को, कौन सा रिस्क से एक्सपोज्ड होगा फीटस? तो लिथियम पे बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लिथियम इज अ टेराटोजेनिक ड्रग एंड इट कैन कॉज द एब्स्टीन एनोमली, बॉक्स शेप हार्ट, बॉक्स शेप्ड हार्ट। तो एब्स्टीन एनोमली का रिस्क है लिथियम से, इसलिए कभी भी यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करना चाहिए प्रेगनेंसी में? अगर प्रेगनेंसी है और बाइपोलर डिसऑर्डर है तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मली तो लिथियम यूज कर रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी we use the atypical antipsychotics, we use the atypical antipsychotic drugs। so atypical antipsychotics यूज करते हैं जैसे कि एरिपिप्राजोल, क्विटियापिन, वो ड्रग्स आप यूज करते हैं प्रेगनेंसी में, लिथियम यूज नहीं करते हैं। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए गाइज। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया कि इसमें जो मैं बार बार क्लास में बोलता हुआ आया हूँ कि या तो आजकल क्लिनिकल कोरिलेशंस, क्लिनिकल क्वेश्चंस आपको क्लिनिकली पता होना चाहिए कि कैसे कैसे मैनेज करना है, क्या होगा। तो आप देखिए पॉइजनिंग के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे क्लिनिकल सिनेरियोज दिए हुए थे, लेकिन थे सिंपल, टॉपिक्स वही थे जो हम पढ़ते हैं, क्लिनिकली हम पढ़ते हैं आजकल, तो वही सब कुछ है। क्लिनिकल इंटीग्रेशन आजकल मैं बोलता हूँ क्लास में बहुत ज़रूरी है और वैसे हम क्लास लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट आपने देखा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे कि कुछ मैकेनिज्म जो कि कॉन्सेप्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ फर्स्ट लाइन ड्रग्स। तो दो ही टाइप के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल मीन्स बेसिक सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, एंड क्लिनिकल मीन्स हाउ टू रिलेट द क्लिनिकली। तो ये दो चीज़ तरीके से आपको पढ़ना है। रटने का ज़माना चला गया, सीधा ड्रग ऑफ चॉइस का ज़माना चला गया, वन लाइनर्स का ज़माना चला गया। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन उतना बेटर है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो प्री एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट से, और फिर उसको क्लिनिकल कोरिलेट करना आना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दीज क्वेश्चंस। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू।